بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل رحیم و کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیدوں کو خوب تر جاننے والا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں محمد آفاق عباسی آپ کو اسلامی عقیدت عرض کرتا ہے. ناظرین اکرام، آج 10 اپریل 2022 کا یہ دن اور مری اور کلیات کا خوبصورت موسم. اور آج اگر بات کی جائے 10 اپریل کے حوالے سے تو یہ اس سال 2022 کا 100واں دن ہے. یعنی آج اس سال کے دنوں کی سنچری مکمل ہو گئی ہے. آج سنڈے ہے اور مری اور کلیات کا خوبصورت موسم ہے اور یہ سنڈے 100واں دن ہے سال 2022 کا. اس طرح 265 دن اس سال کے اختتام پر میں باقی ہیں. اور آج کے دن کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ یہ خوبصورت نظارے بھی مری کے نوائی علاقہ کے کر رہے ہیں. مری ہے یہ ملکہ کوسار مری اور ملک کا معروف ترین سیاحتی مرکز اور اس کا نوائی علاقہ مسیاڑی گڑیاں کے قریب سے میں اس وقت رواں دواں ہوں مری شہر کی جانب. اور آج کے دن کے حوالے سے اگر بات ہو رہی تھی، جس طرح سے میں آپ سے بات کر رہا تھا، تو پچھلے پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو گزشتہ چند دنوں سے پاکستان میں بڑی دلچسپ صورتحال رہی ہے سیاسی پوائنٹ آف ویو سے. اور یہ میں آپ کو گوش گزار کرتا چلوں کہ گزشتہ 3.5 سال سے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور گزشتہ روز وہ رجیم اپنے اختتام کو پہنچی ہے. اس طرح یہ پاکستان کا جو سفر شروع ہوا تھا 1947 سے، اور اس سفر میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے خان لیاقت علی خان. اور گزشتہ روز جو وزیر اعظم عمران خان نیازی انہوں نے اختتام کیا اپنے ٹینیور کا، اور تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ان کی حکومت پائے تکمیل تک پہنچی، اپنے انجام کو پہنچی. وہ تھے عمران خان نیازی. عمران خان نیازی نے پاکستان پر 3 سال 7 ماہ اور 22 دن حکمرانی کی، اور بالآخر گزشتہ روز ان کی حکومت اپنے اختتام کو پہنچی. اور یوں گزشتہ چند دنوں سے بلکہ 1 ماہ سے تقریباً پاکستان میں غیر یقینی صورتحال تھی اور بڑی ایک اعصاب شکن اضطراب میں مبتلا تھی پوری قوم اور سیاستدان، اور جتنے بھی لوگ تھے وہ ایک انتہائی ہیجانی کیفیت میں مبتلا تھے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے. تو گزشتہ روز تحریک عدم اعتماد عمران خان نیازی کے حکومت کے رجیم کے خلاف مکمل ہوئی ہے. تو یہ چونکہ لوکل روڈ ہے اور یہاں پر تنگ سڑکیں اور ان پہ سفر کرنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے. دوران ڈرائیونگ مشکل ہوتا ہے. دیہی علاقوں کو لنک کرنے والی جو سڑکیں ہوتی ہیں ان پر سفر کرنا اور یہاں پر گاڑی کا چلانا، اور دوران سفر چونکہ یہ تنگ جو ٹرن ہوتے ہیں، موڑ ہوتے ہیں، وہاں پہ بعض اوقات مشکلات ہوتی ہیں. اور اسٹریٹ جب چڑھائی ہوتی ہے تو وہاں پر گاڑی کا سفر بھی جاری رکھنا بعض اوقات کھٹن ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. اور اس طرح کی چونکہ یہاں پر بجری پڑی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے یہاں سلپری تھی. تو ناظرین اکرام، بات ہو رہی تھی موسم کی، تو آج مری اور کلیات کی اگر موسم کی بات کی جائے تو یہاں پر آج درجہ حرارت جو ہے وہ 22 سیلسیس اور 23 سیلسیس کے درمیان ہے. 22 اور 23 یقینی طور پر آج یہ ایک معتدل موسم ہے اور یہاں پر بڑا خوشگوار موسم. اس وقت سورج اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. اور آج اگر رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی بات کی جائے تو آج 8 رمضان مبارک ہے، اور یہ 8 رمضان المبارک 1443 ہجری کا دن. اور یہ مری کا خوبصورت موسم اور خوبصورت نظارے آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس وقت میں گڑیاں کے مقام سے ملکہ کوسار مری کے مار روڈ کی جانب گامزن ہوں. خوبصورت نظارے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اور جس طرح میں بات کر رہا تھا خان رجیم کی، تو خان رجیم گزشتہ روز اپنے اختتام کو پہنچی ہے. اس طرح پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپل پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں نے مل کر خان رجیم پی ٹی آئی حکومت عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی. اور تاثر یہی پایا جاتا تھا کہ اس سے پہلے پاکستان میں کوئی بھی تحریک عدم اعتماد نو کانفیڈنس موشن
सक्सेसफुल नहीं हुई थी। तो यही गालिब गुमान था और PTI के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का भी यही अंदिया और यही उनका स्टांस था कि वो किसी सूरत में भी इससे जो मोशन आई है तहरीक अदम एतमाद की, इसको वो किसी सूरत में भी कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ ने देखा कि वो मोशन जो पहली है ये तहरीक अदम एतमाद थी, वो गुज़श्ता रोज़ रात 12 बजे के करीब अपने अंजाम को पहुंची। यूँ इस तरह वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान ख़ान, जिन्होंने इस की ज़द में आए हैं और वो पहली मरतबा ये खूबसूरत मंज़र आप देख सकते हैं। ये मरी का नवाई इलाका इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है और यहाँ पर प्लांतोबाला अमारात और उनका खूबसूरत मंज़र। तो मैं आपसे बात कर रहा था जिस तरह से कि ख़ान रजीम अपने अख्ताम को पहुँची है और अब आज चूँकि 10 अप्रैल 2022 का दिन है और आज पाकिस्तान में कोई भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। आज तहरीक अदम एतमाद के बाद पाकिस्तान की कौमी असम्बली में नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए गए हैं वज़ीर-ए-आज़म के लिए। मियाँ शहबाज शरीफ और PTI की जानब से शाह महमूद कुरैशी ने नॉमिनेशन पेपर जमा किए हैं और इस तरह ये कल वो दिन होगा जब यकीनी तौर पर अक्सरियत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इत्तेहादी जमातों पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के साथ काफ़ी इम्कान है कि पाकिस्तान के 31वें वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। और इस तरह ये गुज़श्ता चुके चंद दिनों से जो गैर यकीनी और अनसर्टेनिटी की कैफियत थी पाकिस्तान में, वो इख्तिताम को पहुँचेगी और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बड़ा खुशाइंद होगा, चूँकि अभी 1.5 साल इस हुकूमत के टेन्योर में बाकी है और तकरीबन 1.5 साल के बाद 5 साल मुकम्मल होंगे इस हुकूमत के। तो इस तरह कल ये फ़ाइनल हो जाएगा कि कभी इम्कानी तौर पर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ कल पाकिस्तान के 31वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाएंगे। तो ये थी आज और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और यकीनी तौर पर ये गैर यकीनी सूरत हाल कल ख़त्म हो जाएगी। और इस वक्त पाकिस्तान में एक महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है और खूबसूरत नज़ारे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन इकराम, ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का नवाई इलाका है और अब अगर पीछे बैकग्राउंड में देख सकें तो ये एक्सप्रेस वे जो पिंडी से रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी को लिंक करती है और उसके अगर बैकग्राउंड में देखा जाए तो ये पतियाटा की पहाड़ी चोटियाँ हैं जहाँ पर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते थे। तो ये मलका कोसार मरी का नवाई इलाका इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है और ये खूबसूरत मंज़र, खूबसूरत मौसम और मुतदिल मौसम और नज़ारे और मलका कोसार मरी, चूँकि इन दिनों रमज़ान मुबारक माह सियाम मुबारक है, तो इन दिनों मरी और गलियात में सेवों का रश खासी महदूद हो गया है, ना होने के बराबर है। लेकिन इस वक्त मौसम बड़ा माकूल है, मुतदिल है और लोगों की वो जो तादाद होती है आम तौर पर यरगार कर देते हैं सियाह मरी पर, वो इन दिनों खासी महदूद है। यकीनी तौर पर ईद उल फितर के बाद मुल्क के तूल अर्ज़ से सियाहों की एक बड़ी तादाद मलका कोसार मरी और नवाई इलाकों का रुख करेंगी, जिससे यहाँ पर एक मतलब फिर रौंड के जो मरी और कलियात की होती हैं वो अपने उरूज पर पहुँच जाएंगी और लोग यकीनी तौर पर उससे एक मतलब फिर कारोबारी सरगर्मियाँ भी अपने उरूज को पहुँच जाएंगी। और ये मैं आपको गुज़ार करता चलूँ कि गुज़श्ता दौर हुकूमत में मरी में उस तरह की, हालांकि लोगों की ये ख़ासी ख्वाहिश थी कि ख़ान रजीम चूँकि सियाहत पर फोकस किया हुआ है तो सियाहत को खातिर खा इम्प्रूव किया जाएगा और खातिर खा बेहतरी आएगी। लेकिन देखने में यह आया है, ये बदकिस्मती रही है PTI हुकूमत की कि मरी में और पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में बड़ा मुतासर हुई है सियाहत इस दौरे हुकूमत में। और कोरोना वायरस की वजूहत भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ भी वजूहत हों, लेकिन यहाँ पर ख़ासा मुतासर की हुई है सियाहत मरी और गलियात की इस गुज़श्ता रजीम में। और उम्मीद यही है कि चंद दिन के बाद हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब भी बन जाएंगे।
चूँकि उनके पास भी अक्सरियत है नून लीग की इत्तेहादियों के साथ है, तो मुतवक्का तौर पर वो वज़ीर आला होंगे। और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं महकमा मौसमियात मरी की बिल्डिंग, और ये बाईपास रोड, जीगा गली, लॉरेंस कॉलेज रोड, और इस पर गाड़ियाँ कारें फराटे भरती हुई, और खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत मौसम, और ये एक्सप्रेस वे के मनाज़र और मरी के नवाई इलाकों के ये मनाज़र आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। और ये लॉरेंस कॉलेज और मरी रोड, महकमा मौसमियात मरी की बिल्डिंग, और खूबसूरत मौसम और ख़ूबसूरत नज़ारे। और ये एक ग्राउंड है, तो धोबी घाट ग्राउंड, और ये एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स गुज़श्ता इसी जो कल रजीम इख्तिताम को पहुँची है, इसमें इसका संग बुनियाद रखा गया था। ये साबिक़ एक ग्राउंड था, लेकिन अब एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाने का ऐलान किया गया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 2-2.5 साल से इसका काम इल्तवा का शिकार है या सुस्त रवि का शिकार है, और अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका। तो इस वक्त सूरज अपनी पूरी आबताब के साथ चमक रहा है। तो और ये 8 रमज़ान मुबारक का खूबसूरत दिन ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्सप्रेस वे मरी रावलपिंडी के मनाज़र और खूबसूरत मौसम, दूर दूर तक चूँकि विज़िबिलिटी ज़्यादा क्लियर नहीं है, हल्की सी धुंध है, और जिसकी वजह से दूर तक मनाज़र नहीं देखे जा सकते। लेकिन अगर मौसम बारिश के बाद दूर तक विज़िबिलिटी क्लियर होती है, मतलब जब क्लियर हो जाता है तो उसके बाद खूबसूरत ये कम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है मरी के नवाई इलाका, जिसका ज़ेर तामीर है। और बड़ा खूबसूरत मौसम है, चूँकि बाहर की आमद है, बाहर का मौसम है, और इस वक्त हर तरफ हरियाली, खूबसूरती, और वो जो मरी और गलियात का ख़ासा है खूबसूरती, सरसब्ज़ शादाब जंगलात। और ये मलका कोसार मरी का कदीम बाज़ार है, जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। और ये कदीम बाज़ार, और ये मरी का चूँकि एक कदरे मुश्तरक है, शिमला भारत का शहर है, और शिमला और मलका कोसार मरी ये बिल्कुल एक जैसे दोनों शहर हैं। लेकिन यहाँ पर कंक्रीट का पहाड़ बन चुका है बेअंगम तामीरात की वजह से। तो अपने मेज़बान मोहम्मद आफाक अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमी नासिर।